students. Today I am taking the lecture from the school itself. If there is any disturbance, just let me know. There would be some disturbance as such, so I want all of you to use your headphones while attending this lecture. Okay? So let us start with our topic today. Okay students, in the last class we studied about price and value, use value, exchange value, relationship between use value and exchange value. We studied about goods and services. What are goods and services? We studied about what are the types of goods and services. We also studied about you can say different type of tangible, intangible goods, non-economic goods, economic goods, durable goods, perishable goods, private goods, public goods. You can say consumer goods and producer goods. That's what part we have completed in the last class. Let us start with your, you can say, today's topic. Today we are going to start with your wealth and welfare. What is wealth? What is welfare? And meaning, characteristics of wealth. We'll try to cover. You can say, yes, I think that much would be enough. Type of wealth and welfare, that much part we will try to complete in today's lecture. Okay? Till 2.7.1 we will complete in today's lecture. Okay? So let us start with it. Concept of wealth and welfare. Now, the concept of wealth was something which was given by the prominent author, that is Adam Smith. Okay? Adam Smith gave the concept of you can say wealth, that economics is a science of Adam Smith. Economics is a science of wealth. It was given by Adam Smith. Just a second beta, ये सब मेरे लिए भी थोड़ा हाँ. Economics is a science of wealth. That is a concept which is given by Adam Smith. ठीक है? And Alfred Marshall, he gave the idea of economics as welfare. ठीक है? Welfare का जो concept है, it was given by Marshall. Yani, he did not deny the concept of Adam Smith, but he added to the concept of Adam Smith and considered economics as welfare. What is wealth? First of all, wealth is anything which is useful for you, scarce and capable to be exchanged and can be owned by something. For example, I would give gold. ठीक है? इट इज़ यूज़फुल किसके लिए? टू मेक ज्वेलरी, है ना? गोल्ड से हम ज्वेलरी बना सकते हैं, पहन सकते हैं. स्कैर्स है, कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सचेंज, हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं. एंड इट इज़ ओन्ड बाय यू कैन से एनीवन कैन बिकम द ओनर. इट्स ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड. नाउ वेल्थ क्या नहीं है? जैसे फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, है ना? So sunlight, it is useful. Yes, it is useful for us. It is not scarce, but it is not scarce. It cannot be exchanged. Sunlight cannot be exchanged, and it cannot be owned by someone. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं sunlight का owner हूँ. Only God is the owner of sunlight. So sunlight, it is useful. It is useful for us, but it is not, you can say, considered as wealth in the economy. समझ में आया? So what, anything which is useful, scarce and capable of being exchanged. For example, money, है ना? एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ. वेल्थ के एग्जाम्पल है आपके मनी है, देन वी हैव कार, गोल्ड, देन वी हैव प्रॉपर्टी. एक्सेट्रा. ठीक है? सो दे आर इंक्लूडेड इन योर वेल्थ. अगर हम लोग यू कैन से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ? दैट इज फर्स्ट, it should possess the character of usefulness. It should possess the characteristics of usefulness.
That means you should be able to satisfy your wants with the help of, you can say, wealth, whatever wealth you have. जो भी हम, you can say, जिस चीज़ को हम consider कर रहे हैं, it should be able to satisfy your wants, your need. ठीक है? Otherwise, it is not considered as wealth. That is the first or the prominent, you can say, characteristics. जैसे for example इन्होंने दिया है house, है ना, vehicle. House किसके लिए useful है? To live, है ना. Vehicle है to drive yourself to different places. Jewelry, ठीक है, to look beautiful, हम लोग अच्छे दिखे उसके लिए यूज़फुल है. और टू एक्सचेंज एज वेल, वो आगे हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो वॉट एवर यू हैव, इट शुड बी स्केर्स. ओके, लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड वन. इट शुड बी स्केर्स. वेल्थ वो है जो स्केर्स है. जैसे मैंने आपको बताया सनलाइट, तो सनलाइट इज यूजफुल, यस और नो. इट इज हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुलनेस, बट इट इज नॉट स्केर्स. Every day from 8 to, you can say, 5 o'clock in the evening, you get the, you can say, sunlight. So it is not scarce. That is why it is not having the value of being the wealth. वो wealth नहीं है. It is useful but it is not wealth. ठीक है. So it should have two value. Either one of, any one of it. जैसे for example दो value है. One is exchange value, सेकेंड इज यूज वैल्यू. अगर उसके अंदर एक्सचेंज वैल्यू नहीं है तो इट इज़ नॉट कॉल्ड वेल्थ. जैसे सनलाइट है वो स्केर्स है, इट मे बी स्केर्स, बट वाटर, इट इज़ स्केर्स बट इट इज़, वाटर भी अब तो देखा जाए तो कैटेगरी ऑफ वेल्थ में आ गया है. ऐसा कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर है ना वर्ल्ड में, इट विल बी बिकॉज ऑफ वाटर. रीज़न ऑफ वर्ल्ड वॉर वुड बी वाटर. तो बहुत स्केर्स होने लग गया है. इन फ्यूचर इट वुड बी कंसिडर एज अ, यू कैन से, मनी. Okay, so this is your second point. Let us move further. You just keep your textbook with you. Wherever you find any thing difficulty, just tick mark the difficulty and you can ask me. You can say आप मुझे कॉल करके difficulty आपके पूछ सकते हो. Next is it should have physical or intellectual existence. Physical और intellectual existence. Physical existence तो जैसे मैंने आपको बताया, कार है ना, हाउस है, दे हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस. इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक देती हूँ AR रहमान. ठीक है, तो AR रहमान कौन है? ही इज़ अ, यू कैन से, फेमस. आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है. नो, दिस इज़ नॉट द वन. सॉरी बेटा, थोड़ा बीच में एक गलती हो गई. ओके, फिजिकल तो जो मैंने बताया आपको कि इट शुड हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, कि भाई कार है, बस है, दे हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस. इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस की बात करें तो जैसे मैंने बताया AR रहमान, व्हाट इज़ हिज क्वालिटी? उसकी क्वालिटी क्या है? ही इज़ अ ग्रेट सिंगर. आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज सॉन्ग्स. सो ही इज़ हैविंग दिस सिंगिंग. तो ये जो सिंगिंग है AR रहमान की, इट इज़ वेल्थ. देर आर, यू कैन से, जो भी फिल्म कंपनीज है वो AR रहमान का बैनर लेने के लिए, फिल्म मेकर्स, दे विल पे crores and crores of rupees, करोड़ों रुपए देंगे, सो दैट टू गेट द बैनर ऑफ AR रहमान. अब जो AR रहमान की जो म्यूज़िक है, ऐसा ज़रूरी नहीं वो सारी म्यूज़िक खुद बनाए, उसके असिस्टेंट है, वो लोग मिलके भी उसको हेल्प करके उसको बनाए. तो बट द इंटेलेक्चुअल वैल्यू ऑफ म्यूज़िक, इट इज़ देयर इन देम, सो दैट हेल्प्स देम टू बिकम द, यू कैन से, उनकी वेल्थ क्या है? सिंगिंग. ठीक है, it may not be having it existence, but physical existence, but it is having intellectual existence. So human brain or intellect, for example, right now I am teaching you. Why I am teaching you? Because I have knowledge of teaching you economics, statistics, and you can say OCM. So these are my intellectual value, intellectual existence. You people paid school fees, कम है, नॉमिनल है,
Why you paid the school fees? So that the teachers who are teaching in Rajasthan Seva Samiti will teach you. You paid the fees to get the intellectual value which we are having. So for our school, Rajasthan Seva Samiti Sanchalit Rajasthan School, the knowledge of the teacher is its intellectual value. अगर ये intellectual value ना हो, मतलब अगर स्कूल में अच्छे टीचर्स ना हो, good teachers, if there won't be any good teachers, तो एक good building will be of no use. आप स्कूल में घूमने नहीं आते हो, है ना? आप घूमने के लिए बिल्डिंग में जाओ, बिल्डिंग देखने के लिए नहीं आते हो, आप स्कूल में पढ़ने आते हो. So good teacher, the intellectual existence of good teachers makes Rajasthan school, you can say, a good school, and students are ready to pay good fees. हम लोग नहीं लेते, पर अगर सपोज हम लोग फीस ज़्यादा चार्ज करेंगे तो अच्छी टीचर्स होगी तो ही you can say they will pay. उससे भी एग्जाम्पल है और दूसरे दे दो. फॉर एग्जाम्पल देर आर सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मैं नाम नहीं लूँगी पर अदरवाइज उसकी वो हो जाएगी, एडवर्टीजमेंट हो जाएगी, किसी का भी लूँगी तो वो लोग क्या करते हैं, दे नेम टीचर्स, अपने एडवर्टीजमेंट में वो टीचर का नाम रखते हैं कि भाई दिस टीचर इज द वन हु विल बी टीचिंग इन आवर स्कूल. सो देयर goodwill helps them to get the admission in that educational institute. So intellectual का मतलब वो होता है, okay, which can be exchanged, मतलब जो मैं आपको दे सकूँ, that is wealth. मतलब मैं मेरा नॉलेज आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ, मैं अभी आप स्कूल में भी नहीं आ रही हो तो आ रहे हो तो भी मैं आपके साथ में मेरा नॉलेज आई एम शेयरिंग विद यू. ठीक है, ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट इट. लाइक फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया है साइंटिस्ट, मतलब फॉर एग्जाम्पल APJ अब्दुल कलाम, ही वॉज अ साइंटिस्ट एंड his novel values, novel ideas where you can say wealth for our nation. ठीक है, next is wealth constitutes of goods which are capable to be exchanged. Goods which are capable to be exchanged, उसमें क्या है आपका, फॉर एग्जाम्पल you can see, सॉरी बेटा अभी ये सब नया है मेरे लिए. ओके, गुड्स आर कैपेबल टू बी एक्सचेंज, मतलब फॉर एग्जाम्पल एज आई टोल्ड यू कि आई मे बी ए गुड कुक, मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, है ना? आई एम अ गुड कुक बट आई मे, योर मॉम, आपकी मम्मी बहुत अच्छी कुक है बट शी इज़ नॉट शेफ़. जो आप देखते हो ना मास्टर शेफ़ में, तो मास्टर शेफ़ में आप क्या देखते हो कि भाई वो शेफ़ आते हैं एंड दे एक्सप्लेन द डिशेस एंड दे पुट इट इन अ सच अ वे कि वो देखने में खाने में बड़ी बकवास होती होगी पर देख के आपको खाने की इच्छा हो जाए. तो योर मॉम मे बी गुड कुक बट शी मे नॉट बी शेफ़. ठीक है, तो शी इज़ कैपेबल टू कुक बट शी इज़ नॉट एबल टू एक्सचेंज हर टैलेंट, और वो टैलेंटेड है पर वो एक्सचेंज नहीं कर पा रही है, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट वेल्थ. जैसे बोलते हैं ना, होम मेकर जो भी है वो बहुत टैलेंटेड होती है पर वो अपना टैलेंट मार्केट में बेचती नहीं है, एंड एज दे आर नॉट सेलिंग इट इज़ नॉट गुड्स. ठीक है, और इट इज़ नॉट गुड्स, एंड एज इट इज़ नॉट गुड्स दे आर नॉट वेल्थ. ठीक है, सो अगर घर में हम देखें कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल प्रेशियस मेटल, लैंड, दे आर हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स, बट द पर्सन हु मेक्स हाउस, और बोलते हैं ना जो मकान को घर बनाती है, दैट इज़ मदर, उसकी कोई वेल्थ, उसको कंसिडर वेल्थ किया जाता नहीं है. ठीक है, सो विच कैन बी एक्सचेंज इन द मार्केट इज वेल्थ, विच कैन नॉट बी एक्सचेंज इन द मार्केट इज नॉट वेल्थ. क्लियर, लेट अस मूव फर्दर. ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबल मतलब क्या होता है कि द गुड्स शुड नॉट बी जो है पेरिशेबल. पेरिशेबल गुड्स आर नॉट वेल्थ. फॉर एग्जाम्पल टोमेटो, मैं टोमेटो को सेव कर सकती हूँ फॉर 1000 ईयर्स और 2000 ईयर्स? नो, आई कांट सेव टोमेटोज फॉर 1000 ईयर्स, सो इट इज़ नॉट वेल्थ. बट हनी, है ना, और यू वुड से हनी के अलावा एक बोलना नहीं चाहिए बट ठीक है, वाइन. वाइन इज समथिंग विच कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ऐसा बोलते हैं जितनी पुरानी वाइन उतना ज़्यादा वो एक्सपेंसिव होती है. देयर आर बॉटल ऑफ वाइन विच कॉस्ट लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज़, लाखों रुपये की है. क्यों? क्योंकि वो इट इज़ देयर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, सो द थिंग इज इट वुड पैरिश
in a very short time period cannot be considered as you can say wealth. For example, land, house, precious jewelry, ये लंबा है, it will stay for a longer period of time, so it is durable, so it is considered as wealth. But food grains एक साल में, 2 साल में, 3 साल में खराब हो जाएंगे, it is not considered as wealth. For same way labor done by the laborer, मैं आपको जैसे for example जो laborer है, he whatever he is working, it is quite perishable in nature. ठीक है, तो इट कैनॉट बी स्टोर्ड, आप डब्बे में उसका लेबर स्टोर नहीं कर सकते, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट वेल्थ. ठीक है, बट नाउ टेक्नोलॉजी हैज़ रीडिफाइंड वेल्थ. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, टीचिंग वॉज नॉट वेल्थ. टीचिंग वॉज नॉट वेल्थ पहले, बट नाउ इट कैन बी वेल्थ. वाई? हाउ? आई वुड रिकॉर्ड माई वीडियो, मैं अपना जो नॉलेज है उसको रिकॉर्ड कर दूंगी इन अ वीडियो एंड आई मे सेल इट इन द मार्केट. अभी आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ, बट मैं ऐसा बोल सकती हूँ, जैसे वेदांतु है ना, और बहुत सारे ऐप्स हैं जो ऐसा बोलते हैं कि आप हमारे लेक्चर्स टीचर्स जो लेते हैं वो सुनिए और आपको जो डिफ़िकल्टी हो वो पूछिए, एंड फॉर दैट दे आर चार्जिंग मनी. सो टेक्नोलॉजी हैज़ डिफाइंड फ्यू थिंग्स विच वर नॉट वेल्थ बिफोर, नाउ दे आर कंसिडर्ड एज वेल्थ. तो जो ड्यूरेबल है, विच कैन बी स्टोर्ड, इज वेल्थ. जो नहीं है, दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज वेल्थ. लेट अस मूव फर्दर. ओके, let us move further. Type of wealth. Type of wealth में first is your individual wealth and social wealth. अब individual wealth क्या है? Individual wealth is a wealth owned by an individual, you can say for his own consumption. That is your individual wealth. For example, my car. My car is my individual wealth. My house is my individual wealth. And social wealth क्या है आपका? Social wealth is something which is owned by a group of people for their collective work. That is known as your social. That is known as your social wealth. ठीक है? For example, बस. जो बस होती है ना, जिसमें यू ट्रैवल, और ट्रेन, दैट इज़ आवर सोशल वेल्थ. ओके, यहाँ पे एग्जांपल दिया है डैम, दैट इज़ योर सोशल वेल्थ. वी कलेक्टिवली पे फॉर इट एंड वी कलेक्टिवली यूज़. डैम से जो पानी आता है, नर्मदा डैम से जो पानी आता है, फॉर एग्जांपल जो नर्मदा डैम का पानी आता है वो हम लोग कलेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ योर सोशल वेल्थ. नेक्स्ट इज़ योर नेशनल वेल्थ एंड इंटरनेशनल वेल्थ. नेशनल वेल्थ का मतलब क्या होता है? विच इज़ ओन्ड बाय अ सिंगल नेशन. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव एग्जाम्पल ऑफ कश्मीर. कश्मीर इज़ अवर नेशनल वेल्थ. गुजरात और वॉट एवर इज़ देयर इन गुजरात, कश्मीर, राजस्थान, दैट इज़ कंसिडर्ड एज अवर नेशनल वेल्थ. और इंटरनेशनल वेल्थ में वी विल कंसिडर्ड ओशंस. कोई भी ओशन ऐसा नहीं है जो सिर्फ एक ही कंट्री में इट विल बी देयर. इट touches the boundaries of 2 or more countries. So there are oceans which is considered as international wealth, and rivers, कुछ rivers है वो national है, कुछ international है. तो rivers are national, oceans are internationals. ठीक है, तो that is you can say sky. इंटरनेशनल वेल्थ का सबसे बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है स्काई. तो स्काई एंड ओशन आर समथिंग विच इज़ ओन्ड बाय 2 or more country. अब आप बोलोगे ओशन कैसे वेल्थ हो गया? तो ओशन में ऐसे हमको क्या क्या मिलता है? फिश मिलती है ना, मिनरल्स मिलते हैं. तो उसको कौन लेगा? वो 2 countries, मोर देन 2 countries है तो दे विल टेक. अगर मेरा कंट्री है तो आई विल टेक. स्काई है तो स्काई में वी विल नीड टू, यू कैन से, आवर एरोप्लेन, है ना. एरोप्लेन कैसे उड़ेगा? विद द हेल्प ऑफ, यू कैन से, इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्काई. ठीक है, तो दैट इज़, यू कैन नॉट कंसिडर स्काई एज अ नेशनल वेल्थ, इट इज़ अ इंटरनेशनल वेल्थ. ठीक है, दिस इज़ योर कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ. आई होप the things are clear. Let us move towards the next concept. If you have any difficulty, just underline the difficulty and you may ask me. Let us move further. Welfare.
वेलफेयर का मतलब क्या होता है? एनहांसमेंट इन द लाइफ सिचुएशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यू कैन से लाइफ सिचुएशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड ओवरऑल स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये जो वेलफेयर है, मैंने जो बताया था, इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शल। मार्शल ने कॉन्सेप्ट दिया था। इट इज़ मोर ऑफ फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल इन नेचर। मतलब क्या है वेलफेयर का मतलब क्या है कि जो वेल्थ है, बट वी कंसिडर मटीरियल वेलफेयर। जो एडम मार्शल ने इंक्लूड किया था मटीरियल वेलफेयर, ही डिड नॉट टॉक अबाउट द इमटीरियल वेलफेयर, जो बिना पैसों के होता है। ठीक है, एनीथिंग विच यू गेट इट विदाउट पेइंग ए सिंगल पेनी, दैट इज मटीरियल वेलफेयर। सो वेलफेयर मीन्स एनहांसमेंट ऑफ लाइफ सिचुएशन। कैसे होगा वो लाइफ सिचुएशन? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मनी, ठीक है, with money I bring a gym membership, and with gym membership I have a good health, ठीक है। so money help me to have a good health, that will give me better life, that is my welfare, ठीक है। फॉर एक उसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब आई हैव मनी, ड्यू टू मनी आई ट्रैवल बाय प्लेन, है ना, एंड आई सेव माई टाइम एंड आई यूज गेट द बेनिफिट ऑफ लग्जरी, ठीक है। तो इट इज़ अ लग्जरी, दैट इज़ माई वेलफेयर। आई गेट अ बेटर, यू कैन से देर आर पीपल हु वर नॉट हैविंग मनी एट दिस टाइम, वो लोग पैदल जा रहे थे, तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? इट इज़ लो, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वाई? बिकॉज दे डोंट हैव मनी। सो वी टॉक अबाउट वेलफेयर विच इज़, यू कैन से मटीरियल वेलफेयर। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मटीरियल वेलफेयर की, ठीक है। स्पिरिचुअल वेलफेयर की हम लोग बात करेंगे नहीं। ओके ओके। जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसका मेन एम क्या होता है? अल्टीमेटली जो हम वेल्थ कमाते हैं, वेल्थ, जैसे फॉर एग्जांपल हाउस, हाउस का एम क्या है? टू लिव पीसफुली, ठीक है, लिव विथ पीस, है ना, पीसफुली हम लोग को जीना है, उसके लिए हम लोग को हाउस चाहिए। तो दैट ब्रिंग्स व्हाट? वेलफेयर, वो मेरे लिए वेलफेयर लेके आता है ना। ओके, लेट अस मूव फर्दर, ठीक है। नेशन की बात करें तो नेशन में का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है ना, मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ती है, और यू कैन से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ इम्प्रूव होती है, दैट कम्स टू एज वेलफेयर। we want to have welfare even if we want to give wealth, and the main aim of getting wealth is to get the welfare। हमको wealth क्यों चाहिए? हमको पैसा क्यों चाहिए? जिससे हमारा फ़ायदा हो, हमारा उद्धार हो। तो wealth is the reason, sorry, welfare is the reason to get wealth, ठीक है। our aim is wealth, sorry, it's not wealth, our aim is welfare, and to achieve this welfare we earn wealth। समझ में आया? दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वेल्थ एंड वेलफेयर, ठीक है। एडम स्मिथ, मार्शल, बोथ वर राइट। वेल्थ इज समथिंग विच इज क्वांटिटेटिव इन नेचर एंड वेलफेयर इज समथिंग विच इज क्वालिटेटिव इन नेचर, ठीक है। So this is the concept of wealth and welfare. Today I think we will stop till your wealth and welfare. I hope all of you understood the concept. If you don't get any difficulty, read till your page number. Let me see what is your page number. Read till your page number 15 till this point. आप पढ़ लीजिए, A and B both class students. If you have difficulty, please message me. I will reply to your message. Okay, let us complete your chapter here. You can say lesson here. Before that, I would like to give you homework. So I would your homework will be what? What is wealth? First question. Second, what is welfare? Explain relation between wealth and welfare.
Okay, so I want all of you to complete this much as your homework. All of you stay home, stay safe.